નમસ્કાર, પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શો કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આપ જાણો છો કે લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે અને લોકડાઉનનો કપરો સમય ચાલી રહ્યો છે. કપરો સમય એટલા માટે કે લોકડાઉન 1, 2, 3 અને 4 ભલે થોડું હળવું છે, પરંતુ લોકો ક્યાંક કંટાળ્યા છે અને એને જ લઈને આપ જુઓ છો કે આ જ કાર્યક્રમમાં ખાસ આપણે અલગ અલગ રમતોની વાત કરીએ છીએ. રમતો સાથે જોડાયેલા જે ખેલાડીઓ છે એમની સાથે આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ અને સાથે જેવા મહાનુભાવો જે ક્યાંક આ રમત સાથે સંકળાયેલા છે તેમને ટીવી સ્ક્રીન પર લાવી કેટલીક જે એમના અનુભવો શેર કરતા હોય છે, કેટલીક જે કોઈપણ ગેમ વિશેની રોમાંચક ભરી વાતો કરતા હોય છે, એમના અનુભવ શેર કરીને. અને સાથે જ આ શ્રેણીમાં જે ઘણી બધી રમતોની વાત કરીએ છીએ એમાં કેટલીક રમતો એવી છે કે જે કદાચ આપણે એમ કહીએ કે ભારતીય પરંપરાવાળી આ રમતો છે ને એમાં આજની રમતની વાત કરીએ તો આ રમત એવી છે કે જે સૌ કોઈ આનાથી પરિચિત છે. પરિચિત જ નહીં, હું તો કહું છું કે દરેક લોકો પોતાની સોસાયટીમાં કે ઘરની આગળ આ રમત ચોક્કસ રમ્યા જ હશે. અને માન્યું કે એટલું પ્રાધાન્ય આ રમતને મળતું નથી, પરંતુ એક મજાની આ રમત છે ને આ રમતનું નામ છે ખોખો. યસ, ખોખોની રમત વિશે આજે વાત કરવી છે કારણ કે સાઉથ એશિયન કન્ટ્રીઝમાં આ રમત વધારે રમાય છે અને ત્યારબાદ નો ડાઉટ જાપાન અને માલદીવ્સ પણ તેમાં જોડાયા છે અને એમણે પણ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લીધો છે. પરંતુ વિશ્વ ફલક પર વાત કરીએ તો ખોખોની રમત એટલી લોકપ્રિય નથી રહી અને ક્યાંક ચેઝિંગ અને રનિંગની મુખ્ય ભૂમિકા છે. ચોક્કસ ભારતે કેટલાક સફળ ખેલાડીઓ આ રમતને લઈને આપ્યા છે અને આ જ રમત વિશે વાત કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે સ્પોર્ટ્સ એક્સપર્ટ એવા અશોક મિસ્ત્રી મારી સાથે જોડાયા છે. સાથે જ ઇન્દોરથી જોડાયા છે કે જેઓ અર્જુન એવોર્ડ વિજેતા છે, રાની ઝાંસી એવોર્ડ જેમની પાસે છે, જેમને વિક્રમ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા છે એવા ભારતીય મહિલા ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન અને 2019માં સાઉથ એશિયન ગેમ્સ રમાઈ હતી અને એમાં જે વિમેન્સ ટીમ હતી ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો એ વિમેન્સ ટીમના ચીફ કોચ સુષ્મા સારોલકર મારી સાથે છે. અને અન્ય એક ગેસ્ટની વાત કરીએ તો ભારતના પૂર્વ ખેલાડી અને 2019ના સાઉથ એશિયન ગેમ્સ ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ મેન્સ ટીમના ચીફ કોચ સુદીપ મહાસકર મારી સાથે છે. અશોકજી, સુષ્માજી, સુદીપજી, ત્રણેયનું આપનું સ્વાગત છે આ કાર્યક્રમમાં. થેન્ક યુ. નમસ્તે. અશોકભાઈ, શરૂઆત કરીએ તો ખોખોની રમતની વાત થાય એટલે એમ કહેવાય કે આ એક પરંપરાગત રમત છે. જેમ કબડ્ડીને આપણે કહી શકીએ કે ભારતીય રમત છે, પરંપરાગત રમત છે, પરંતુ આ માટીમાં રમાતી એક રમત કહી શકાય. અશોકભાઈ, લોકપ્રિય પણ છે અને રોમાંચક પણ છે, પરંતુ ક્યાંક એક સવાલ એ થાય કે સ્કૂલ ને કોલેજ પૂરતી જ સીમિત રહી ગઈ છે, મર્યાદિત રહી ગઈ છે. વિશ્વ ફલક પર અશોકભાઈ જોઈએ એટલો વ્યાપ આ રમત, આ ગેમ કરી શકી નથી. તો એની પાછળનું કારણ એક એક્સપર્ટ તરીકે આપ શું માનો છો? બેઝિકલી ખોખોની રમતમાં રોમાંચ છે. ખોખોની રમતમાં જે પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એક્સાઇટમેન્ટના જોઈએ બધા જ છે. રમવામાં સરળ છે, બહુ સારી રીતે રમાય છે. સ્કૂલ કોલેજોમાં યુનિવર્સિટી લેવલ ઉપર સારી રીતે આપણે રમાતા જોઈ પણ કરી. માટીમાં રમાતી રમતો ધીમે ધીમે લુપ્ત થતી જાય છે. મેટિંગ ઉપર આવી ગઈ, સરફેસ ઉપર આવી ગઈ અને એટલા માટે આ પણ એક માટીમાં રમાતી રમત એ ધીમે ધીમે એક અલગ સરફેસ પર આવવાની પ્રયત્ન કરી રહી છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એક્સેપ્ટેબલ થઈ નથી. કારણ કે હજુ આપણે તો માટી સાથેની રમત તરીકે જ ખોખોને ઓળખીએ. આપણી ભારતની ઓરિજિનલ મહાભારતમાં જ્યારથી આપણે જોઈએ ચક્રવ્યૂહ જયારે રચાતી, એ ચક્રવ્યૂહ કાંક હોય તો એ આ ખોખોની રમત છે. એટલે આટલા વર્ષો જૂની રમત છે અને બેઝિકલી ઇવન ઇન્ડિયામાં તમે જુઓ તો મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે રમાય છે આ રમત. હું જયારે મુંબઈ હતો ત્યારે મેં જોયું હતું કે પ્લેન્ટી ઓફ પીપલ પ્લે ધીસ. પણ ભારતના બાકીના હિસ્સામાં તમે જુઓ તો પણ કદાચ આ રમતનું ઉત્પાદન પણ એ છતાંય અત્યારની પરિસ્થિતિ સાઉથ એશિયન ગેમ્સના જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી, આ બંને મહાનુભાવો જે ચીફ કોચ છે અને બહુ સરસ રીતે ગોલ્ડ મેડલ જીતીને આવે છે. ઇન્ટરનેશનલ ફલક ઉપર ઇંગ્લેન્ડ સાથે પણ આપણી વાતચીતો ચાલે છે, ત્યાં પણ આપણે રમી શકીએ છીએ. પણ હજુ સુધી જે પ્રમાણે ક્રિકેટ છે, જે પ્રમાણે બાસ્કેટબોલ, બેડમિન્ટન છે, ટેનિસ છે, એ પ્રમાણેની એક્નોલેજમેન્ટ હજુ મળી નથી. પણ હવે એમ લાગે છે કે જે પ્રમાણેનું અત્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, જે રીતે સરકારના પ્રયત્નો છે, આવનારા ભવિષ્યમાં આ રમત પણ ઇન્ટરનેશનલ ફલક પર ડેફિનેટ. તમે જુઓ કબડ્ડી આની સાથેની જ રમત છે, છતાં ઇટ હેઝ ગોન ઇન્ટરનેશનલી કારણ કે એને સપોર્ટ મળ્યો. આ રમતને એક સપોર્ટની જરૂર છે. ઇફ ઇટ ગેટ્સ તો એ આ રમત પણ જબરદસ્ત રીતે આગળ દોડશે. જી बिल्कुल सुषमा जी, इंदौर से बिलोंग करती हो. सवाल ये कि इतने सारे अवार्ड्स आपने प्राप्त किए, भारतीय महिला टीम के कैप्टन रह चुके, कई सारे नेशनल मेडल्स भी आपके नाम है. सफर की बात करते तो सुषमा जी, कहाँ से ये सफर शुरू हुआ, कितना रोमांचक रहा, एक खिलाड़ी की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे?
अ, सबसे पहले तो मैं ये कहना, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। और मेरे खेल की शुरुआत इस तरह से हुई कि मैं इंदौर की रहवासी, और इंदौर में हैप्पी वंडर्स क्लब का बहुत नाम था। करीब ये 1970s की बात है। तब वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों खिलाड़ी वहाँ पे जाते थे। पर वो जमाना ऐसा था कि उस टाइम लड़कियों को घर के बाहर भेजना पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, और वो भी निकर में खेलना। तो ऐसे टाइम में हमारे जो कोचेस थे, स्वर्गीय श्री प्रभाकर कुलकर्णी, स्वर्गीय श्री मधुकर पत्ती जी, सुधाकर उर्वरेशे, लक्कड़ दादा थे, तारे दादा, इन लोगों ने घर घर जाकर और लड़कियों को ग्राउंड पे लाया, और उनका जो डेडिकेशन था बच्चों को अच्छे खिलाड़ी तैयार करने का, उसकी वजह से ही आज हमारा जो हैप्पी क्लब है वहां पे 3 अर्जुन अवार्डीज है, 6 रानी झांसी अवार्ड जो कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाते हैं, और विक्रम पुरस्कार जो कि स्टेट अवार्ड है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, लड़के और लड़कियों को मिला हुआ है, और करीबन 1000 मेडल्स हमारे क्लब को मिले हुए। तो ऐसी एक गौरवन्वित हिस्ट्री हमारे क्लब की है। तो इस ग्राउंड पे हमारी क्लब की पुष्पा भामोदकर, जो कि सब उस जमाने की सर्वश्रेष्ठ खो खो खिलाड़ी थी, और उसके साथ 400 मीटर की इंटरनेशनल प्लेयर भी थी। उसने इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट किया था श्रीलंका में, जो एशियन टूर्नामेंट से थे उसमें। तो उनको देख के मैं और मेरी बड़ी दीदी नीलिमा सारोलकर, अब पोंगशे है, उसको भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, मेरे पहले उनको ही अर्जुन अवार्ड मिला है। और मेरे बड़े ब्रदर है डॉक्टर अनिल सारोलकर, हम तीनों ही ग्राउंड पर जाना शुरू किया। और उसके बाद जैसे क्लब पे जाने के बाद एकदम से तो खो खो नहीं खिलाया, वहां पे उस टाइम 100 से 125 खिलाड़ी ग्राउंड पे आते थे। तो पहली शुरुआत हमारी लंगड़ी, उसके बाद डॉस बॉल, रुमाल झपट्टा, ऐसे जो छोटे छोटे गेम्स होते थे वो खिलाकर होती थी। और उसमें यदि आप कुछ अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आपको जूनियर टीम में लिया जाता था। तो और उस टाइम जैसे खो खो में एजिलिटी लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड, स्किल, स्टेमिना, तो ये जो टीम मोटर्स है इसके खेल के, वो सभी मोटर्स इसमें होते थे। तो हमें शुरुआत एथलेटिक्स से की जाती थी। तो उस टाइम मुझे उन्होंने एथलेटिक्स की भी शुरुआत, साथ खो खो के साथ साथ एथलेटिक्स की भी शुरुआत की। 10 साल की आयु में जब बैंगलोर में ऑल इंडिया इनविटेशन टूर्नामेंट थी, तो उस टाइम 11 टीम की खिलाड़ी थी, वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। लेकिन एग्जाम का टाइम होने की वजह से एक खिलाड़ी कम पड़ रहा था, तो मुझे मौका मिला। और वहाँ जो जी, और वहाँ जो कॉम्पिटिटिव नेस देखा, जो टीम आपस के जो रोमांचक मुकाबले देखे, वो देखने के बाद मेरा रुझान खो खो की तरफ हुआ। तो ऐसे टाइम में सर हमारे से एथलेटिक्स की पूरी प्रैक्टिस करवाते थे, और वो एथलेटिक्स प्रैक्टिस करवाने के लिए सवेरे 4:30-5 बजे वो मुझे घर पे लेने आते थे कि आपको प्रैक्टिस करने चलना है। तो एथलेटिक्स वर्ग में उन्होंने मुझे 100, 200, 400, 800 मीटर्स की प्रैक्टिस करवाई, और इसका नतीजा ये भी हुआ कि मुझे 400 और 800 मीटर्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला। और मुझे इंटरनेशनल स्कूल फेडरेशन द्वारा जो टूर्नामेंट चैंपियनशिप आयोजित होती है, तो उस टाइम वो पेरिस फ्रांस में होने वाली थी, उसके लिए भी मुझे इनवाइट किया गया था। लेकिन उस टाइम स्ट्राइक था, ट्रेन का स्ट्राइक था, उसके कारण मैं जा नहीं पाई। पर वो एथलेटिक्स वर्क मुझे खो खो में काम आया। और बिल्कुल, यानी बिल्कुल आपने जो कहा सुषमा जी की शुरुआत में बहुत हार्डवर्क किया है, कहीं लक भी काम कर गया है। दीप जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक मेंस टीम के चीफ कोच हो आप, सवाल ये है कि आपने भी 2002 से लेकर 2012 तक खो खो खेली, कई सारे सीनियर नेशनल टूर्नामेंट्स खेले, कौन सी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है और एक खिलाड़ी की हैसियत से कौन सी यादें अभी शेयर करना चाहोगे? जी, बताना चाहूंगा। आपने सबसे पहले तो आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो भी इसी क्लब से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे सुषमा जी ने बताया कि हैप्पी वंडर्स क्लब जो है वो भी मैं भी बिलोंग्स टू इंदौर ही हूँ। और मेरी जर्नी 1998 से चालू हुई वैसे। और मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैं ग्राउंड पे गया तो मुझे भी काफी रिक्रिएशन गेम खिलाए गए,
शुरुआत में लंगड़ी हुआ और दूसरे अदर एक्टिविटीज एथलेटिक्स की जो होती है, और टेबल टेनिस भी वहाँ पे चलता था। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो खो खो में थोड़ा ज्यादा, मेरी स्पीड अच्छी थी, इंडोरेंस भी था काफी, तो मेरा रुझान थोड़ा खो खो की तरफ आउटडोर स्पोर्ट्स में आया। और देखते ही देखते 3 महीने में ही मेरा फर्स्ट नेशनल हो गया था। तो इस टाइप से मेरी शुरुआत वहां से हुई, और उसके बाद में करीब करीब मैंने 12-13 नेशनल खेले इसमें। और एसजीएफआई मतलब स्कूल गेम की जो कंपटीशन होती है उसमें मेरा सिल्वर मेडलिस्ट, मतलब नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ मैं, सिल्वर जो सेकंड प्लेस मेरी आई है 2 बार। तो बताना चाहूंगा इसके बाद की जो जर्नी थी आगे, वो है यूनिवर्सिटी लेवल की। यूनिवर्सिटी में मैं डीएवीवी का कैप्टन भी रहा हूँ, देवी विश्वविद्यालय। तो 3 साल मैंने वेस्ट जोन में यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया डीएवीवी की तरफ से। और स्टार्टिंग पीरियड की जैसे आपने बात की, तो हम घर में बहुत, मतलब मैं मस्ती करता था। तो मेरे काका जो है वो सभी इन क्लब से जुड़े हुए थे, हैप्पी वंडर से। तो उन्होंने हमें घर में नहीं रुकने दिया, उन्होंने बोला कि आप घर में मस्ती मत करो, ग्राउंड पे जाके खेलो। तो खेल खेल में ही हमें वहां पे गया, मेरा इंटरेस्ट आया। और जैसे बताना चाहूंगा, ये जो ताई तो बहुत सीनियर है हमारे, जो सुषमा मैडम जो है, और हमारे जो गुरु भी रहे वो शरद जपे सर जो साई कोच है, सुनील शुक्ला सर, और बाकी जितने भी कोचेस है, तो उन्होंने सबने ही मतलब बहुत योगदान दिया हमारे पीछे, उनकी भी मेहनत है कहीं ना कहीं, तभी आज इस मुकाम पे हम पहुंच पाए हैं। બિલકુલ બિલકુલ અશોકજી, તમને ખાસ મારે એક સવાલ કરવો છે કે ખોખોની રમતની વાત કરીએ તો દરેક રમતની એક કમ્પેરિઝન થતી હોય છે, એક તુલના થતી હોય છે. ખોખોની રમતની જો અન્ય રમતો સાથે તુલના કરીએ તો એક તો આ રમતને ક્યાં મૂકશો, બીજું દરેકને એવું હોય છે કે હું આ ગેમ સાથે જોડાઈશ ત્યારે મારી કેરિયરનું શું શું કરિયર બનશે કે કેમ. એક વસ્તુ એ પણ હોય છે કે કરિયર પણ એમાં બનાવવાની હોય છે. ખોખો અને કબડ્ડી આમ જોવા જઈએ તો એક સરખી રમત છે. તો બીજી વસ્તુ છે કે અત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર અત્યારે જોવા જઈએ તો કબડ્ડી લોકપ્રિય થઈ રહી છે, જ્યારે ખોખો જેસે તે પરિસ્થિતિમાં છે. આની પાછળનું કારણ શું? ખાસ કરીને તમે જોયું તો કબડ્ડી પણ આની સાથેની જ ગેમ છે, જેમ વાત કરી એ પ્રમાણે. પણ પ્રો કબડ્ડી શરૂ પછી જે પ્રમાણે કબડ્ડીનો પિકઅપ થયો, કબડ્ડીને જે રીતે લોકો એક્સેપ્ટ કરતા થયા, બીજા દેશો એમાં જોડાતા થયા, આ પણ એક માટીની જ રમત હતી. પણ નાઉ ઇટ ઇઝ પ્લેડ ઇન ડિફરન્ટ ફોર્મેટ અને ખૂબ અલગ રીતે રમાય છે, અને બધા દુનિયાના ઘણા બધા દેશો એમાં ભાગ લે છે. અમદાવાદમાં આપણે વર્લ્ડ કપ જોયો છે આનો. એટલે આમ જોવા જઈએ તો જો આ રમતને પણ કોઈ એવો જબરજસ્ત સ્પોન્સર મળે, અથવા તો કોઈ એવી વ્યક્તિ મળે કે જે આ રમત ઉપર એમ કે નહીં, કમ ઓન, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ ફોર ધીસ સ્પોર્ટ, તો આ રમત પણ એક કેટેગરીમાં આવી શકે છે. કારણ કે ધીસ ઇઝ વેરી ઇઝીલી આ કોઈ પણ વ્યક્તિ રમી શકે એવી રમત છે. તમારામાં ફિઝિકલ ફિટનેસ હોવી જોઈએ, જે દરેક રમતમાં જોઈએ. તમારી પાસે આની અંદર છે, એના કરતા પણ સારા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ અથવા તો તમે ડેવલપ થઈ શકો છો. એટલે હું માનું છું કે રમત, તમે વાત કરી કેરિયરની, તો આપણે જોઈએ છે કે મેડમ પણ જે રીતે શી ઇઝ ઇન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, આપણા સુદીપભાઈ છે હી ઇઝ ઇન સેગ, તો ક્યાંક ને ક્યાંક જોબ પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી અત્યારે છે જ. રમત ગમતના તમે કોટાની વાત કરો અથવા તે કરો, તો અત્યારના તબક્કે જે રીતે સ્પોર્ટ્સની સાથે સંકળાયેલા ખેલાડીઓને તકો મળે છે એ પહેલા કરતા, સુષ્માજી કદાચ મારી સાથે એગ્રી થશે કે એ વખત કરતા અત્યારે દેર આર મિલિયન્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આર ધેર. ખેલાડીઓ પોતે રમત એક પિકઅપ કરીને એમાં આગળ વધી શકે. તો એક તો પહેલી વસ્તુ કે પેશન જોઈશે. બીજું કે આપણું જે માઇન્ડ ડાયવર્ટ અત્યારે ક્રિકેટ ઉપર જ થયું છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક ટેનિસ અને બેડમિન્ટન અને કબડ્ડી, આ 3 રમતો એ હાવને તોડવામાં સફળ થઈ છે. તો ખોખો પણ ચોક્કસ એમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે એમ છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ ટાઈમ. અત્યારે સરકારની નીતિઓ પણ બધી જે છે એ પણ રમત ગમત તરફી છે. તો ધીસ ઇઝ ધ પ્રાઇમ ટાઈમ કે આની અંદર આ રમતને પણ આપણે એક જમ્પ આપી શકીએ. सुषमा जी, आप सीनियर रह चुके हैं, सुदीप जी ने भी बताया, अशोक जी ने भी बताया कि एक पैशन चाहिए. बरसों से आप खो खो खेल रहे हैं, और सवाल ये है कि कई बार बोलते हैं कि वो भी एक समय था, ये भी एक समय है, वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना है. आप भी सोचते होंगे कि मिट्टी से लेकर मैट्रेस तक का आपका ये सफर, नहीं अशोक जी, दिलीप जी, वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना है. कौन सा बदलाव देख रहे हो आप, और कौन सा बदलाव होना चाहिए इस गेम को लेकर? देखिए, पहले जब हम लोग खेलते थे तो ग्राउंड पे मिट्टी पे गेम होता था, और उसके लिए भी जो स्पीड वगैरह लगती थी, तो उसके लिए बताया मैंने कि एथलेटिक्स पूरा लगता था. और अभी जो मैट्रेस पे धीरे धीरे इन्हें ये इंटरनेशनल गेम बनाना है इसको, इसलिए खेल में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं. और चूंकि फॉरेन खिलाड़ी जो है वो शूज के बिना खेलते नहीं है, इसलिए उसको मैट पे खेलने का प्रयोजन किया गया है कि
सामने टीम में कुछ आकर्षण पैदा हो, जिससे कि लोगों को भी उसके प्रति कुछ लगाव हो, उसके प्रति आकर्षण हो। इसलिए खिलाड़ियों को मैट शूज दिए जाते हैं, कलर्ड किट रहती है, और खेल में भी कुछ बदलाव किए गए हैं कि जैसे नियम में चेंज है। जैसे पहले सेंटर लाइन में कुछ फाउल देते थे, पर अब वो सेंटर लाइन फाउल जब आप खिलाड़ी को आउट करोगे तभी वो फाउल आउट, तब वो आउट नहीं माना जाएगा यदि सेंटर लाइन में खिलाड़ी को आउट करते टाइम करोगे तो। फिर टच एंड थ्रो के लिए उन्होंने कुछ किए, डायरेक्शन की इसमें कुछ चेंज, तो ऐसे वो चेंजेस करके गेम में कुछ स्पीड लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और वो स्पीड इसलिए कर रहे हैं कि लोगों का इसके प्रति रुझान हो, खेल में रोमांचक हो। इसलिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है सुधांशु जी मित्तल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री राजीव जी मेहता, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महेंद्र सिंह जी त्यागी, और उनकी जो पूरी टीम इस खेल को कैसे आगे ले जाए इसके पीछे लगी हुई है। और अभी इसके कारण ही अभी एशियन खो खो टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला था खो खो का फरवरी में, पर ये लॉकडाउन के कारण ये स्थगित किया गया। फिर इंटरनेशनल कोच के लिए भी ट्रेनिंग रखा गया था कि बाहर भी इस खेल का प्रचार प्रसार हो और ये खेल आगे बढ़े। बिल्कुल माना जाए कि हाँ बूस्ट और मिल प्रो रहा है, लीग, यही सब। यस, हाँ, खो खो प्रो लीग भी आयोजन हो रही है, खो खो प्री लीग का भी आयोजन हो रहा है, इसके लिए स्पॉन्सर भी मिल गए हैं और वो भी अभी होने वाला था, पर ये लॉकडाउन के कारण वो भी पोस्टपोन हुआ है। पर ये सब आने के बाद खिलाड़ियों में भी फाइनेंशियल पोजीशन खिलाड़ियों की अच्छी हो जाएगी और बाहर के लोगों में भी इस खेल के प्रति लगाव बढ़ेगा। इसके चलो कारण ये सुदीप सारे जी, चेंजेस यस, भी हो रहे हैं और मैं सुदीप जी टूर्नामेंट के पास आयोजित आना हो रहे हैं। चाहूंगा। सुदीप जी, आपसे पूछना चाहूंगा, साउथ एशियन और गेम्स के हम गोल्ड यही चाह मेडलिस्ट। रहे हैं कि हाँ, अभी जो आने वाला एशियन गेम्स है उसमें खो खो को इंक्लूड किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुषमा जी। सुदीप जी, आप साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय मेंस टीम के भी कोच रह चुके हैं। सवाल यह कि गोल्ड मेडल टीम की कौन सी यादें दर्शकों के साथ शेयर करना चाहोगे शॉर्ट में, और कौन सा बदलाव आप देख रहे हैं सुदीप जी? जी, जैसा कि मुझे KKFI मतलब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी मेरे करियर को देखते हुए, जिस तरह से मैंने गुजरात में काम किया अभी तक। और वहां पे जब मैंने देखा तो इंडिया में इतना डेवलपमेंट है, मैं तो देख के हैरान हो गया वहां पे, क्योंकि इतने टॉप के प्लेयर वहां पे आए। उनका नियर अबाउट 15 डेज का कोचिंग कैंप हमने लिया और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे सभी स्टेट में से, बिल्कुल जो टॉप प्लेयर होते हैं और सीनियर नेशनल के उसमें, और जो उसके पास्ट रिकॉर्ड होंगे उनके, उनको देख के उनका सिलेक्शन इंडिया टीम के लिए हुआ था। तो काफी मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि वेल स्किलफुल गेम है उनका पहले से ही, मतलब जो टेक्निकली होना चाहिए गेम। और इस लेवल पे जब एथलीट आता है, मतलब कोई भी प्लेयर अगर इंटरनेशनल लेवल पे आएगा तो वेल बेस तो उसका तैयारी होता है, हमको खाली उनको नर्चर करना है, खाली सुदीप जी, टेक्निकली या टेक्निकली। जी जी सुदीप जी, एक बदलाव जो अहम बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव कौन जी। सा है? एक बदलाव सिर्फ कौन सा होना चाहिए इस गेम को लेकर शॉर्ट में? गेम को लेकर तो सर, पहले मिट्टी के ऊपर गेम खेला जाता था, मतलब क्ले सरफेस पे, और अभी जैसे आप देखेंगे तो मैट आ गए और उसके ऊपर मैट शूज भी इन्वेंट हो चुके हैं। और आने वाले समय में अल्टीमेट खो खो के नाम से भी एक जैसे प्रो कबड्डी होता था, वैसे अल्टीमेट खो खो भी होने वाला है। और उसके लिए भी आई थिंक कि बॉलीवुड के काफी सुपरस्टार जुड़ गए हैं KKFI से। तो आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा खो खो के लिए, चलो और बिल्कुल खो खो बिल्कुल, का आशा भविष्य रखते हैं कुछ अच्छा ही होगा बहुत सुदीप जी, उज्जवल है। आशा रखते हैं। समय जी की जी પાબંદી जी के जी कारण જે પ્રમાણે जी जी અશોકભાઈએ પણ વાત કરી કે રોમાંચ છે ચોક્કસ, પરંતુ કબડ્ડી જેટલો સપોર્ટ મળ્યો નથી, પરંતુ એક વાતાવરણ બની રહ્યું છે અને ખાસ એક પેશન જોઈએ, ફિટનેસ જોઈએ, અને એક વસ્તુ એ પણ છે કે તમારામાં સ્ટેમિના જોઈએ જો કદાચ આ ગેમ રમવી છે તો. આ ચર્ચા હતી આજની રમત એટલે કે ખોખોની, ને ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ સુષ્માજી, સુદીપજી, અશોકજી, આપ ઉપસ્થિત રહ્યા, ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર.